الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ ذاریات مکمل ہو چکی تھی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ طور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ ذاریات اور سورہ طور، علماء کرام کہتے ہیں کہ سورہ ذاریات اور سورہ طور جو ہیں وہ جوڑے کی شکل میں ہیں۔ یہ جو دو صورتیں ہیں یہ جوڑے کی شکل میں ہیں۔ سورہ ذاریات میں دیکھیں، سورہ ذاریات کا جو مضمون ہے، جو مقسم علیہ ہے، وہ ہمیں مضمون بتاتا ہے۔ کوئی بھی صورت جو قسم والی ہوتی ہے، اس قسموں والی صورت میں جو مقسم علیہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ایک بات کی قسم کھانا اور کس بات پر قسم کھانا، یعنی کہ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکمت والے قرآن کی قسم۔ اب یہ قسم کھائی گئی قرآن کی، اور کس ریفرنس سے کھائی گئی ہے؟ حکمت والے قرآن کی قسم کھائی گئی ہے۔ قرآن کو حکمت کے اینگل سے دیکھا گیا ہے، اور کس بات پر کھائی گئی ہے کہ انک لمن المرسلین، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے اگر ہم اس کو حکمت سے دیکھیں، اگر ہم حکمت کے پریزم سے دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انک لمن المرسلین، اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم سورہ ذاریات پڑھتے ہیں تو ہم نے پڑھا والذاریات ذروا، ہم نے پڑھا کہ ہواؤں کی قسم، یعنی کہ اس سے مراد ہوائیں تھیں، لیکن اس سے استدلال کیا تھا؟ انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے جب ہم مقسم بہی کو پڑھتے ہیں تو مقسم بہی کو ہم مقسم علیہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور مقسم علیہ کو مقسم بہی کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی جب آپ سورہ طور پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سورہ ذاریات کا جو مضمون تھا، جو عمود تھا، جو بنیادی مضمون تھا، وہ تھا انما توعدون لصادق، جو کہ مقسم علیہ تھا کہ انما توعدون لصادق، تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے، کس چیز کا وعدہ؟ جی اٹھنے کا وعدہ۔ اور جی اٹھنے کا جو وعدہ تھا وہ ہمیں مقسم بہی جو قسمیں تھیں، ہم نے ان کو غور سے دیکھا، ہم نے ان کا تجزیہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جی اٹھنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور تمہارے ساتھ جو جزا اور سزا کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، چار چیزیں ہیں یا تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے جی اٹھنا، دوبارہ جی اٹھنا، یہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد جی اٹھنے کے بعد جو جزا اور سزا ہے، جنت یا جہنم، یہ اور چیز ہے۔ یہ بھی سورہ ذاریات میں ہو گئی تھی۔ سورہ طور میں جو ہے وہ ہے قیامت، وہ جو زمین و آسمان میں جو اس عظیم حادثے کا رونما ہونا ہے، سورہ طور میں وہ بات کی جا رہی ہے۔ یعنی سورہ ذاریات میں یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، 1 2 3 4 5 قسمیں ہیں۔ فی رق منشور یہ قسم نہیں ہے، یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ اس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے متعلق جو ہے خبر دی جا رہی ہے۔ 5 قسمیں کھانے کے بعد یہ ہے مقسم علیہ، ان عذاب ربک لواقع، یعنی کہ ہم نے ان قسموں کو دیکھنا ہے، ان قسموں کو ہم نے ایسے دیکھنا ہے کہ وہ چیز واضح ہو جائے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب آنے والا ہے اور اس کو دور کرنے والا نہیں ہے کوئی۔ دیکھیں اگر ہم کسی جگہ جاتے ہیں، اگر ہم ایک کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں پینٹنگ پڑی ہوئی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل دیتی ہے، یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس پینٹنگ کو کسی پینٹر نے بنایا ہے۔ ہم اگر ایک روم میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ اگر ایک کمپیوٹر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اگر ہم کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کمپیوٹر کو انجینئر نے بنایا ہے۔ اچھا اب آگے ہم جاتے ہیں تو کچھ نوٹس پڑے ہوتے ہیں، نوٹ بک ہوتی ہے اور اس پہ نوٹس لکھے ہوتے ہیں، قیمتی انفارمیشن لکھی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کسی پڑھے لکھے نے شخص نے جو ہے وہ نوٹس بنائی ہیں، یہ خود بخود تو نہیں بن گئے۔ اب پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پینٹنگ اس بات کی گواہی ہے، یہ پینٹنگ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کو کسی پینٹر نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ استدلال ہے، یہ دلیل ہے، یہ گواہی ہے کہ اس کو کسی انجینئر نے بنایا ہے۔
इसी तरीके से जब हम किसी नोट्स को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसको किसी किसी पढ़े लिखे शख्स ने बनाया है। इसी तरीके से जब हम एक किसी कमरे में जाते हैं तो वहां 2 चाय के कप होते हैं और बर्तन होते हैं, खाना खाया हुआ होता है उनमें, और हम कहते हैं कि भाई यहाँ किसी ने खाना खा लिया है। ये जो खाली बर्तन है और इनमें बर्तन है, इन बर्तनों में जो कुछ बचा बचा कुचा है खाने का, वो इस बात की गवाही देता है कि इस खाने को किसी ने खाया है। फिर उसके बाद आप देख लें कि अगर एक हम कमरे में जाते हैं तो वहां गिलास टूटा हुआ होता है, तो हम कहते हैं कि ये टूटा हुआ गिलास इस बात का सबूत है कि यहाँ कोई कोई हवाई होगी, कोई हवा चली होगी, इसको किसी ने तोड़ा है, कोई बच्चा आया था या कोई शख्स आया है, उससे ये टूट गया। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हम मुक़्सम बिही और मुक़्सम अलैह को, फिर सूरह तूर उन सूरतों में से है कि जो कसमों के बारे में है और जिनमें मुक़्सम बिही है, जिस बात की कसम खाई गई है, यानी कि वो शहादत दे रही है, वो गवाही दे रही है, वो दलील दे रही है, और किस बात की दलील दे रही है, किस बात की गवाही दे रही है, वो भी उसमें वाज़ेह है कि इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ। यानी कि हमने सूरह तूर में तूर को देखना है, किताब मस्तूर को देखना है, वल बैतिल मअमूर को देखना है, वस्सक़्फ़िल मरफ़ू को देखना है, और वल बहरिल मस्जूर को देखना है। यानी कि तूर को मैं आपको एक हिंट दे दूं कि जब हम तूर को देखेंगे, देखिए हो सकता है आप में से जो सुनने वाले हैं वो नए हो, आपने पहले मुक़्सम बिही या मुक़्सम अलैह के बारे में ना जानते हो, या पहले आपको नहीं अंदाजा कि जो जिन सूरतों में कसम खाई गई है उनका बेसिकली क्या तरीका कार होता है। जैसे कि जब आप तूर को देखेंगे तो देखें वत तूर है, अब देखिए ये वाव 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 आ रहा है, जबकि सूरह ज़ारियात में हमने देखा था 4 कस्में थी, लेकिन फा आया था 3 बार। तो फा के बारे में हमने पढ़ा था कि फा जो होता है वो वही चीज हो सकती है, उसकी हैयत बदल बदल जाती है। और फा के बारे में हमने कहा था कि उसमें तरतीब होती है। अब ये जो वाव 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 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये जुदा चीजें हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं। अब एक होता है मुक़्सम बिही और ये है मुक़्सम अलैह, ये सारा मुक़्सम अलैह है जी। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, बेशक आपके रब का जो अजाब है वो वाक़या होने वाला है। वत्तूर यानी कि तूर की कसम, यानी कि तूर गवाह है, तूर का जो पहाड़ है वो दलील है। देखें तूर का पहाड़ है, मैं 1 मिनट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। हम पूरे तूर के वाक़े को देखते हैं और तूर के वाक़े में हमने किस चीज को लेना है, हमने, चूंकि हमें मुक़्सम अलैह ये बता रहा है कि आपके रब का अजाब होने वाला है, वो वाक़या होने वाला है अजाब, ठीक है। हमने तूर को उस अंदाज में देखना है। वह किताब मस्तूर, फिर किताब है, किताब है। अब किताब मस्तूर, अब उसकी सिफ्त बयान की गई है किताब की कि वो लिखी हुई है फिर रकी मंशूर। अब मजीद उसको बयान किया गया कि वो लिखी हुई है, किस में लिखी हुई है, फिर रकी मंशूर। मस्तूर सतर से है, सीन तौरा, ये हम आगे बात करते हैं। लिखी हुई है फिर रकी मंशूर, रख कहते हैं बेसिकली झली को, ऊंट की या हिरनी की जो जिल्द होती है और उसकी जो नरम झिल्ली होती है उसको कहते हैं रकीक। रकीकुल कल भी कहते हैं ना, दिल का नरम हो जाना। तो तौरात को, ज़बूर को, इंजील को वहां लिखा करते थे। तौरात, ज़बूर और तौरात, ज़बूर और इंजील को हिरनी की, ऊंट की जो खाल है, उसकी जो झिल्ली है वहां लिखा करते थे। मंशूर यानी कि वो जो किताब है उसका जो लिखा हुआ है, ये मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि ये रकीब मंशूर यानी कि वो वहां लिखी गई थी, यानी कि ये उस किताब की बात हो रही है। ये इसमें ये बताया गया कि ये उस किताब की बात हो रही है कि जो लिखी हुई है, मंशूर है, जो कि नशर है, ठीक है। ये मंशूर है, ये मस्तूर है, ये मामूर है, ये मरफू है, ये मसजूर है, ये मफऊल उनके वजन पे है, ठीक है। यानी कि ये इसमुल मफऊल का सीगा है, यानी कि ये काम हुआ हुआ है, यानी मंशूर है। इसका मतलब है कि आपने जब तौरात पढ़नी है, यानी कि ये फी रकी मंशूर में तो वाजिया कर दिया ना कि ये जो जिस किताब का जिक्र हो रहा है वो तौरात का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तौरात का जिक्र हो रहा है और तौरात में आपने वो पहलू ढूंढने हैं, या तौरात में तौरात किस हवाले से गवाही देती है कि इन अजाब रब्बी का लवाक़िअ, कि आपके रब का अजाब होने वाला है। फिर वल बैतिल मामूर, अच्छा बैत है, बैत कहते हैं घर को, और मामूर कहते हैं बारौनक को, और रौनक वाला घर। यहां से मुराद क्या है? खाना काबा को अगर उलमा कराम ने 90% उलमा कराम ने, जो मैंने तफसीर देखी हैं, तो 90% उलमा कराम ने खाना काबा लिया है, लेकिन कुछ उलमा कराम ने जो है वो, जैसे कि मौलाना अमीन अहमद इस्लाई साहब हैं, तो उन्होंने इससे मुराद जमीन को लिया है, केवल बैतुल मामूर, इससे मुराद जमीन है जो कि बारौनक है। अब जमीन है, उसकी सिफ्त बयान की गई है कि वो रौनक है। उसका रौनक होना, खाली उस घर का नहीं,
उस घर का बा रौनक होना किस एतबार से दलील है कि इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, यानी कि उस घर का जो उसके घर की जो रौनक है वो आपको कैसे आपको समझ आती है कि वो उस बात की दलील दे रहा है कि अल्लाह ताला का अज़ाब जरूर आने वाला है। वसक़्फ़िल मरफ़ू, और छत है वसक़्फ़ी, सकफ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मरफू बुलंद है। अब सकफ और मरफू जो है, ये सकफुल मरफू जो है आसमान का जिक्र नहीं किया, बुलंद किया। छत है और छत बुलंद है। अब जाहिर सी बात है, छत साफ वाजिया बात की गई है कि छत है, और जब छत का जिक्र किया गया तो जाहिर सी बात है ये हमारे घरों की छत नहीं है, क्योंकि उस छत की सिर्फ बयान की गई है कि वो छत जो है वो मरफू है, वो बहुत बुलंद है, उसको उसको बुलंदी दी गई है। इससे मुराद आसमान है। अब आसमान भी नहीं कहा, आसमान भी नहीं कहा। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या बलागत है, और बुलंद भी कहा। वल बहरिल मस्जूर, यानी कि आसमान का बुलंद होना किस एतबार से गवाही देता है कि अल्लाह ताला का अजाब आने वाला है। और वल बहरिल मस्जूर, बहर कहते हैं समंदर को, और मस्जूर किसे कहते हैं? मस्जूर सीन जीम और रा मादा है, मस्जूर मफूल उनके वजन पे भरे हुए होना। आमतौर पर आपको तर्जुमा मिलता है उबलते हुए। तो अक्सर स्टूडेंट्स को देखा गया है, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि उबलना, वो और माना समझ लेते हैं। मस्जूर जो है ना, ये कसरतुल माना वर्ड है, यानी कि भरा हुआ होना, जोबन पे होना, जोश मारते हुए होना। ये स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं तो ये वो आसान समझते हैं, ये उनको समझ आती है बात। तो जब हम उबलना तर्जुमा करते हैं तो उनको समझ नहीं आती, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से वो देख रहे होते हैं कि वल बहरिल मस्जूर। और एक बात याद रखिएगा कि कुरान पाक में स्पेसिफिकली जब कोई बात की गई है, कुरान पाक में जब कोई कसम खाई गई है, कुरान पाक में जब कोई मिसाल दी गई है, तो उसका मतलब ये है कि वो बात, वो मिसाल, वो कसम, वो सामीईन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि जो बुनियादी गौर व फिक्र है, अगर आप वो करेंगे तो आपको जो जरूरी है वो आपको समझ आ जाएगा। वल बहरिल मस्जूर, जो समंदर है, खाली समंदर नहीं, समंदर की क्या सिर्फ बयान की गई है कि जो उनका भरा हुआ होना, वो जो भरे हुए हैं, ठीक है, उनका जो भरा हुआ होना है। एक तो है उनका खाली होना, वो तो कहत के बारे, वो तो दलील है, एक समझ आती है बात, समझ आ गई ना। यानी कि एक समंदर है जो कि खुश्क हो गया है, चलो वो बात समझ आती है कि वो पानी खुश्क हो गया तो वो कहत की तरफ इशारा करता है, और वो क्या हम कह सकते हैं कि वो वाकई इस बात की दलील दे रहा है कि आपके रब का अज़ाब आने वाला है। लेकिन ये जो बात की गई है वल बहरिल मस्जूर, और भरे हुए समुद्रों की कसम, भरे हुए समुद्र की कसम कि इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, कि आपके रब का अज़ाब आने वाला है। तो देखें, मुक़सम बिही और मुक़सम अलैह में माना लॉक हो जाता है। फिर हमने मुक़सम बिही को मुक़सम अलैह के तहत देखना होता है, और मुक़सम अलैह को मुक़सम बिही के तहत देखना होता है, ठीक है। अच्छा, वत्तूर, वत्तूर की सिफ्त नहीं बयान की गई, वत्तूर की सिफ्त बयान नहीं की गई। वत्तूर यहाँ पे, वत्तूर को समझने के लिए ये वाव कसमिया है, और ये तूर है मुक़सम बिही जिसकी कसम खाई गई है। यानी कि ये तू, अब ये वाव है ना, तो इसका मतलब यह है कि वत्तूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, व किताबिम मस्तूरिन फी रक़्क़िम मनशूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, वल बैतिल मामूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, वस्सक़्फ़िल मरफ़ू इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ। ठीक है, तो ये अतफ का माना जो है वो ये। अच्छा, वत्तूर, अब ये जो तूर है ना, ये तमाम उलमा कराम मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे। बाज़ उलमा कराम ने कहा यहाँ हर पहाड़ को कहते हैं, लेकिन हर पहाड़ को यहाँ पे माना ये नहीं लिया गया। वत्तूर, ये जो अलिफ लाम लगा हुआ है, ये जो अलिफ लाम लगा हुआ है ना, ये बता रहा है कि ये खास है, ये लाम अहद का है, लाम है, लाम अहद का लाम है, तो ये बता रहा है कि ये खास पहाड़ है, तूर है, और वो वही तूर है जिसका ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है। ये वही पहाड़ है, मदियन से मिस्र जाते हुए और मिस्र से मदियन आते हुए रस्ते में जो शाम का जो इलाका है वहां रस्ते में आता है। तूर सीना, तूर सीनान, तूर, तुआ, ये एक ही वादी है। तो तूर जो है तूर वो पहाड़ है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत दी गई। ठीक है, मैं यहाँ पे एक तौरात की जो इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना जो है वो बाइबल की जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें वो कानून है, वो शरीयत के एतबार से लिखा गया। ठीक है, इस्तिस्ना में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ये ड्यूटरोनॉमी किताब
18वां चैप्टर है और 18वीं आयत है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा, खुदावन तेरा खुदा बनी इसराइल के भाइयों में से, यानी बनी इसराइल के भाई कौन है? बनी इस्माइल, उनके भाइयों में से मूसा तेरी मानिंद, तेरी तरह, तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा और अल्लाह उसके मुंह में अपना कलाम डालेगा। ये मुंह में अपना कलाम डालेगा वही, यानी कि उसको लिखी हुई किताब नहीं हम देंगे, उसके मुंह में अपना कलाम डालेंगे। उसके मुंह में अपना, बात समझ आ रही है आपको? उसके मुंह में अपना कलाम डालेंगे, मैं उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा और वो वही बात करेगा जिसका मैं उसको हुक्म दूंगा, और जो कोई मेरी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा खुद। फिर आगे अल्लाह ताला ने बताया कि झूठा नबी वो होता है कि जो वो कहता है और वो होता नहीं। अब ये किताब ससना मैंने आपको कोट किया, सूरह मुजम्मिल, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम, हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा जो कि तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जैसे हमने भेजा था रसूल को फिरौन के पास। जाहिर सी बात है मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा हो रहा है, जैसे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा फिरौन की तरफ। फाअसा फिरऔन रसूला, तो फिरौन ने हमारे रसूल का कहना ना माना। फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, तो फिर हमने उसको ऐसा पकड़ा जैसे पकड़ा जाता है। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम, फ़कैफ़ तत्तक़ूना, तो ये अब हर एक से कहा जा रहा है कि फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम, तो तुम कैसे बच जाओगे इन कफ़रतुम, अगर तुम कुफ़र करोगे मोहम्मद का, अगर तुम कुफ़र करोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफ़ऊल तो नहीं मेंशन किया, लेकिन बात तो यही है कि तुम कैसे बच जाओगे अगर तुम इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करोगे तो। यौम यजरुल विल्दान। अब उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को जो शरीयत दी गई उसमें बड़ी मुमासलत है, और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत दी गई, मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक तो एक खास कौम की तरफ भेजे गए थे, उसी तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अरब कौम की तरफ भेजे गए थे, और एक मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उस वक्त फिरौन एक बनी इसराइल के लिए और एक फिरौन की तरफ भेजे गए थे, यानी कि उस वक्त के आलम के लिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ना सिर्फ अरब की तरफ भेजे गए बल्कि सबकी तरफ भेजे गए। ठीक है, अब हम आते हैं तूर की तरफ। देखिए तूर जो है बेसिकली अल्लाह ताला ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन इसके पीछे पूरी तूर की हिस्ट्री है। अच्छा, बलागत में एक होती है जुजियत, एक होता है महल। जुज जुज बोल के कुल मुराद लेना, यानी कि सिर्फ तूर कह दिया, इससे मुराद सारे वाकयात हैं, इससे मुराद वो वाकयात हैं जो तुम्हें क़यामत की याद दिलाते हैं, जो तुम्हें क़यामत की याद दिलाते हैं। ये कुरान पाक की बलागत है। इसको कहती है सनत इदमाज। सनत इदमाज कहती हैं लपेट देना, जैसे हम कहते हैं ना दरिया को कुएं में बंद कर देना। अल्लाह ताला ने तमाम, यानी कि गौर फिक्र करो, देखो तूर के वाक़े में क्या था। मूसा अलैहिस्सलाम को हमने नबूवत दी, सूरह तहा आपने पढ़ी है, सूरह कसस पढ़ी है, आप पढ़ें, आपने पढ़ी होगी, तर्जुमा सिर्फ तर्जुमा सुन लें, आपको पता चल जाता है कि कैसे वाक़या हुआ, कैसे अल्लाह ताला, यानी तूर ये वो मुकाम है जिस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दी? नबूवत दी। इन अ नटशेल, तूर वो पहाड़ है जहां पे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी। तूर वो पहाड़ है जहां अल्लाह ताला ने फैसला किया, मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि जो बनी इसराइल है इस कौम को हम उरूज देने वाले हैं, और जो फिरौन है, जो उरूज वाला है, हम उसको जिल्लत और रुसवाई की घाटियों में गिराने वाले हैं। ये तूर वो पहाड़ है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है आप देखें कि एक तो कुरैश के लिए, कुरैश के साथ कहा जा रहा है, कुरैश इनको किस तरीके से समझ सकते थे, और हम आज जो इस दौर में रह रहे हैं हमारे लिए क्या इसमें सबक मिलता है। वह तूर कुरैश मक्का को कहा जा रहा है कि देखो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम थे, तुम्हें पता है मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे, क्योंकि मदीने में यहूदी थे तो जानते थे। वह तूर बनी इसराइल का उरूज देना, ये बेसिकली अल्लाह ताला उनको भी बात बता रहा है कि हमने तुम्हारे पर एहसान किया,
کیونکہ طور میں یہ جو واقعہ ہے، میں نے ٹکٹ ان نٹشل میں نے آپ کو بتا دیا کہ طور کا جو مین جو ہے نا کرکس، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائے، ان کی قوم ہدایت پائے. تو ہم نے طور ان کو ہدایت دی. ان میں سے بعض لوگوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے کسی بچڑا جو ہے وہ اس کو اپنا خدا بنا لیا. پھر ان میں سے کیا کیا، پھر ان میں سے ان پر عذاب آیا، وہ انہی کے جو سرداران تھے انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو جو ہے وہ قتل کیا. یہ پوری ہسٹری ہے، ٹھیک ہے. اور پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اے اللہ آپ مجھے اپنا دیدار کروائیے. اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو، میں اپنے تجلی اس پر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ سکا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی اس پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اچھا یہ واقعات جو ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بات کہی ہے، یہ سورہ راف کی آیت 143 میں ہے. پھر اس پہاڑ پہ جانا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے علماء کا، پھر اس پہاڑ پہ زلزلہ آ جانا، اس پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو جانا، اس پہاڑ پہ لوگوں کا مر جانا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جانا. وَطُور، کیا تمہیں اس پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا، جو قریش مکہ تھے وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَيَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان کو اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ اڑا دے گا. تمہیں کوہ طور دیکھ لو، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو. وہ اس پہاڑ آنن فانن اس پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، بنی اسرائیل کو عروج مل جانا، بنی اسرائیل کو عروج میں فرعون کا ذلیل و رسوا ہو جانا. یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے ابو جہل کو، عمر بن ہشام کو، امیہ بن خلف کو، عتبہ بن ربیعہ کو، کہ آج تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم و ستم کر رہے ہو، سعد بن وقاص کو تکلیف دے رہے ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے رہے ہو، حضرت عمار بن یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے رہے ہو، اسلام کی پہلی شہید سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تکلیف دے رہے ہو. ایسا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہم نے فرعون کو ذلیل و رسوا کیا اور وہ جن پر ظلم و ستم کرتا تھا ان کو ہم نے جو ہے وہ ان کو عزت دی، ان کو ہم نے عزت دی. تو اس واقعے کو دیکھ لو کہ ہم نے فرعون پر کیسا پانی بھیجا، وہ جس پانی پر ناز فخر کرتا تھا کہ کیا یہ نہریں میری نہیں ہیں، کیا یہ میرے حکم سے نہیں بہتی، تو اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا. ان عذاب ربک لواقع، تو وہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ آپ کے رب کا عذاب ہونے والا ہے. وہ کتاب مستور، کتاب سے مراد تورات ہے، کیونکہ طور کے ساتھ ذکر آیا تورات کا، اور چونکہ یہ فی رقی منشور، اور تورات دیکھیں، تورات یہ پہلی کتاب تھی. اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ان کو صحیفے دیے، اور تورات یہ پہلی کتاب تھی جو کہ لکھی ہوئی شکل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. چونکہ وقت بہت گزر چکا تھا بنی اسرائیل کا، تو آہستہ آہستہ وہی اترتی، وہ ٹائم نہیں تھا. اگر آپ یہ ہسٹری پڑھیں گے، سورہ راف پڑھیں گے، تو آپ پہ یہ چیزیں واضح ہوں گی. وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب، یہ دیکھیں سین طا اور را مادہ ہے، مفعول ان کے وزن پہ، اسم مفعول. لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ گواہ ہے، فی رقی منشور. یہ مزید واضح کر دیا کہ یہ تورات ہے، اس لیے کہ تورات جب کا نزول ہوا تو اس وقت کاغذ نہیں تھا، وہ ہرنی کی جو ہے وہ جو کھال تھی اس کی جو جھلی تھی اس پہ لکھی جاتی تھی. اس کو جب پڑھنا ہوتا تھا تو کھولتے تھے تو وہ پھیل جاتی تھی، اور جب بند کرنا ہوتا تو اس کو لپیٹ دیا جاتا تھا. فی رقی منشور نشر ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو نہ کوئی نہ جانتا ہو، اس کو جانتا ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. اور اچھا، اس سے مراد کیا ہے، یعنی تورات کیسے گواہی دیتی ہے کہ آپ کے رب کا عذاب آنے والا ہے. تورات میں جو ہے وہ نوح علیہ السلام پر جو عذاب آیا، تورات میں لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، یعنی کہ یہ جو سورہ احقاف کی آیت ہے، کل ما کنت بدعا من الرسل، کل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی یہ کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں تمہاری طرف. سورہ زاریات کا اختتام یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ساحر او مجنون کہا جاتا تھا. فرعون کہتا جب کوئی پیغمبر کوئی معجزہ دکھاتا تھا تو کہا جاتا تھا یہ ساحر ہے، اور جب کوئی پیغمبر انذار کرتا تھا، قیامت سے ڈراتا تھا، تو کہا جاتا تھا کہ یہ مجنون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ یہ جو باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کر رہی ہیں عذاب کی،
वो इन्होंने तो नहीं खाली की, और वो पहली कौमों पर आ चुका है। कौमे आद, कौमे समूद, कौमे लूत, अरब के लोग तो जानते थे, उनकी शायरी में तो जिक्र मिलता है। अगर आप तदब्बुरुल कुरान तफसीर पढ़ें, अगर आप तफसीर कशाफ पढ़ें, तो वो कोट करते हैं और आपको पता चलता है कि उनकी शायरी में कौमे आद, कौमे समूद को कोट किया जाता था। तो ये उनकी तरफ इशारा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अजाब का तुम्हें बता रहे हैं, और इसका ये भी है कि तुम जब सफर करते हो, तो तुम उनकी निशानियां देखते हो, उनके वीरान शहर देखते हो। तो क्या ये इस बात की गवाही नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारे रब का अजाब आने वाला है? जिस तरह उन कौमों पर अजाब आया है, वो तुमसे ताकत में ज्यादा थे, तो क्या तुम कैसे बरी हो इस इम्तिहान से? वल बैतुल मामूर, और उस घर की जो कि बारौनक है। मामूर ये आइन मीम और रा मादा है, आइन मीम और रा मादा है इसमें मफूल के। वल बैतुल मामूर घर। अच्छा, अगर जो उलमा कराम जमीन मुराद लेते हैं, यानी कि वल बैतुल मामूर, अगर चले जमीन मुराद ले लिया और खाना काबा मुराद ले लिया जाए, तो क्या मतलब है? जमीन से मुराद लिया जाए, जो उलमा कराम जमीन मुराद लेते हैं, अगर से उन उलमा कराम की तादाद कम है, लेकिन जमीन से मुराद ये है कि जब कुरैश मक्का जो थे वो सफर करते थे, शाम की तरफ, यमन की तरफ, तो वो कौमे आद, कौमे समूद, कौमे लूत, ये बाकियात देखते थे, और इनको इनको पता था कि ये यहाँ पे अजाब नाजिल हुआ है। तो जब वो वल बैतुल मामूर, बैत घर है, मामूर बारौनक से मुराद ये वो जमीनें या जमीन का वो हिस्सा है जो कि अल्लाह ताला के अजाब से, यानी कि ये तंजिया है, यानी कि वो जो जिन 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 लोगों ने अपने महल बनाए हुए थे ये सोच के कि वो हमेशा हमेशा रहेंगे, अल्लाह ताला ने उनको वीरान कर दिया। वो इस बात की गवाही देते हैं कि आपके रब का अजाब आने वाला है, आपके रब का अजाब आने वाला है। और दूसरी तरफ खाना काबा की अगर हम बात करें, तो खाना काबा ये जो है ये इशारा देता है कि आज जो रौनक है खाना काबा की, तुम्हें क्या वो वक़्त याद नहीं कि जब अबरहा का लश्कर आया था खाना काबा की रौनक को बर्बाद करने, खाना काबा की रौनक को वीरान करने, वो खुद वीरान हो गया। वो हाथी का लश्कर लेके आया थे, तो अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की। ये उस तरफ इशारा है कि वल बैतुल मामूर के वो इस जो बारौनक जो घर है, क्या ये गवाह नहीं है? क्या तुम्हें इस गवाही नहीं? कुरान पाक ने कुछ बातें हिस्टोरिकल की हैं, जैसे देखिए तूर है, तो तूर का ताल्लुक हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ है। तो वह किताब मस्तूर लिखी हुई किताब है, लिखी हुई है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का जिक्र लिखा हुआ है। बेशक उस पर तहरीफ की गई है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, तौरात में लिखा हुआ है। कौम लूत पर अजाब आया, बेशक उसमें तहरीफ की गई है, लेकिन वो लिखा हुआ है कि उन पर अजाब आया, और तुम भी यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं हो, तुम्हें भी उस अजाब से दो चार होना है। वल बैतुल मामूर, तुम खाना काबा को देखते हो, इस खाना काबा को बर्बाद करने के लिए एक शख्स आया था जो कि लाव लश्कर के साथ आया था, और उसका असहाबुल फील हाथी वालों के साथ हमने क्या सलूक किया उसके साथ। तो ये जो रौनक घर है, तो वो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो आसमान से तुम पर अजाब नाजिल करे। वल बैतुल मामूर एक ये भी, और एक ये भी कि जब तुम सफर करते हो, और जब लोगों की जो वो कौमें हैं जिन्होंने अपने घर, अपने महल बनाए ये सोच के कि हम हमेशा हमेशा रहेंगे, उन्होंने इस दुनिया को ही जन्नत समझ लिया, तो उनके घर जब बर्बाद देखते हो, उनकी जो आबाद बस्तियों को जब तुम वीरानी की शक्ल में देखते हो, तो क्या तुम्हें ये अल्लाह ताला की अज़ाब की याद नहीं दिलाती? वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और उस छत बुलंद की, जो कि बुलंद है ना, बुलंद। एक तो हमने पढ़ा कि बारिश है, बारिश ये याद दिलाती है कि तुम्हें जिंदा किया जाएगा, तुम्हें जज़ा और सज़ा मिलेगी, लेकिन ये कैसे याद दिलाती है? इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़, तुम्हारा अज़ाब होने वाला है। जो अरब थे वो दिन को तो सूरज उनको जलाता था, रात को वो सितारों को देखते थे, और वो सितारों का इल्म था उनके पास, वो सितारों से अपनी डायरेक्शन मालूम किया करते थे। आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है कि हम स्टार गेजिंग करें, मून गेजिंग करें, आसमान को देखें। आज तो हम नेचर से तो बहुत दूर हो गए हम। लेकिन वो ये करते थे कि उनकी एंटरटेनमेंट ये होती थी कि वो रात के वक्त जो थे
वो सितारों के नीचे बैठते थे, खुले आसमान में बैठते थे और वो शायरी करते थे, वो कहानियाँ सुनाते थे एक-दूसरे को। और ये उनकी उनकी जो हिस्ट्री थी, उनके कल्चर का हिस्सा था। वसक़्फ़िल मरफ़ू। और ये हो नहीं सकता कि वो शहाब साकिब से ना मालूम हो, ये हो नहीं सकता, वो शहाब साकिब को जानते थे। जब एक टूटा हुआ तारा देखते हैं, तो आपने भी देखा होगा, तो टूटा हुआ तारा जो है, देखें आप ये देखें कि ये एक तो कुरैश मक्का से बात की जा रही है और एक हमसे बात की जा रही है, और किस तनाज़ुर में बात की जा रही है कि आपके रब का अज़ाब आने वाला है। तुम जब आसमान को देखते हो, यानी कि इशारा है, किनाया है, यानी कुरान पाक इशारों से बात करता है। ये कुरान पाक कहता है कि गौर-फ़िक्र करो, तुम इंसान हो, ये सिर्फ़ हमने तुम्हें दी है, तुम गौर-फ़िक्र करो। अफ़ला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या उनके दिलों में ताले पड़े हुए हैं? दब्बर कहते हैं पीछे को। ये तदब्बर का मतलब होता है उसके आयतों के पीछे क्या है, आयतों के पीछे हिकमत क्या है, अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं। वसक़्फ़िल मरफ़ू, बाज़ अहले इल्म के मुताबिक वो जो शहाब साकिब है, जब वो रातों को देखते थे कि सितारा टूट रहा है, तो वो इस चीज़ की निशानदेही करता था कि क़यामत आने वाली है, ये अल्लाह ताला के अज़ाब आने वाला है। आज हम कॉस्मोलॉजिकल यूनिवर्स देखते हैं, आज जो है वो हम दुनिया को फैलता हुआ देख रहे हैं। आज हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वाक़ई जो है हम जो है वो क़यामत के दहाने पर हैं। देखिए हमारी ज़मीन अगर 5% जिस मिदार में वो घूम रही है सूरज की, अगर वो 5% अपने मिदार से आगे हो जाए, तो हमारी ज़मीन का सारा पानी बुखारात बन जाए। अगर पीछे आ जाए, तो ये ज़मीन सर्द हो जाए। हमारे ये साइंस कहती है, स्पेस साइंस कहती है कि बहुत जल्द वो वक़्त आने वाला है कि जब सूरज जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, जब उसको डार्क एनर्जी खींच लेगी। ऐसा वक़्त आने वाला है कि जब सूरज जो है उसकी अपनी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जब सूरज जो है वो हमारी गैलेक्सी से निकल गया, तो ज़मीन पूरे उसके 8 मिनट के बाद ज़मीन भी जो है वो अपने मदार से निकल जाएगी। क्रंच थ्योरी को आप पढ़ लें कि ये जो स्पेस है, ये जो फ्लैट फैल रही है, फ्लैट फैली हुई है। अब देखें ना, व इन्ना लमुबसिऊन है, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुबसिऊन। और इस आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया और हम इसको फैला रहे हैं, हम इस कायनात को फैला रहे हैं। अब देखें 1450 साल पहले उलमा कराम कहते हैं कि 1450 साल पहले इस आयत को समझना मुश्किल था, लेकिन आज के दौर में तो इस कायनात को समझना इतना मुश्किल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, वो उस वक़्त के उलमा कराम के लिए, उस वक़्त के लोगों के लिए वो बात और थी, आज के लोगों के लिए वो बात और है। कायनात जिस तरीके से फैल रही है, कितनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, और हम क्या है, हम सिर्फ 5% ही इस दुनिया को, जो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ है, उसको डिस्कवर कर पाए हैं। बाकी 95 हम डिस्कवर नहीं कर पाए। आप एस्ट्रोफिजिक्स आपने पढ़ी होगी, आपने स्पेस फिजिक्स पढ़ी होगी, तो आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है। और कितने हैं, देखिए कितने जो हैं वो एस्ट्रॉइड्स हैं, जिनको जो है वो मुश्तरी जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है, वो ज़मीन की तरफ आने नहीं देता। और क्या हमें खबरें मिलती हैं कि ज़मीन से कोई सियारा टकराने वाला है, कोई सितारा टकराने वाला है, कोई ये है, बहुत बड़ा तूफ़ान है, ये है वो। तो आज हम ये नहीं कह सकते, हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम सेफ हैं। वसक़्फ़िल मरफ़ू, ये जो मरफ़ू का माना है ना, ये जो है, ये इसमें बहुत बलागत है। तुम जब कायनात देखते हो, जो फैल रही है कायनात फैल रही है, जो ये स्पेस फिजिक्स की तरफ इशारा दिया गया है, कि तुम्हें क्या लगता है यूं ही छोड़ दिए जाओगे? तुम पर अजाब नहीं आएगा? वल बहरिल मस्जूर, समंदर की कसम भरा हुआ, सीन जीम रा मादा है इसका, ये मरफू, रा फा और आइन मादा है, मरफू, और सीन जीम और रा, सीन जीम और रा, मस्जूर भरा हुआ होना। ये भरा हुआ समंदर जो है वो इस बात की गवाह है कि इन्ना अज़ाब रब्बी का लवाक़िअ। मैंने आपसे बात बताई, इसमें कुछ बातें हिस्टोरिकल फैक्ट्स में की गई हैं, जैसे कि तूर की बात, ये साफ बात है कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल बात को समराइज कर लिया गया एक वर्ड में, वो किताब मस्तूर को, वल बैतुल मामूर को। वल बहरिल मस्जूर, भरे हुए समंदर गवाह हैं, जोश मारते हुए समंदर ये गवाह हैं, यह अल्लाह ताला का अज़ाब आने वाला है। ये इशारा दिया गया है, एक तो हमने फिरौन को बर्बाद किया, इस भरे हुए, इस जोबन वाले पानी से, इस उबलते हुए पानी से, इस जोश मारते हुए पानी से।
اور ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو جو کہ بڑے زوراور تھے، ہم نے ان کو جو ہے وہ برباد کیا والبحر المسجور، اس بھرے ہوئے پانی سے، کہ جو بھرا ہوا پانی ہے، جو بھرے ہوئے سمندر ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ اس کی طرف علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اشارہ دیتا ہے فرعون کے عذاب کی طرف کہ ہم نے ان کو بھرے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی سے جو ہے وہ ہلاک کیا۔ وہ جو جوش مارتا ہوا پانی ہے وہ اس بات کی دلیل دیتا ہے۔ باقی علماء کرام نے اس بات پہ بھی بحث کی ہے کہ اگر ہم پانی کو دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، لیکن اگر پانی ہمیں میسر نہ ہو، ہمارا سروائیول ممکن نہیں ہو پاتا، یعنی کہ عربی زبان میں کہتے ہیں تورف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی اپوزٹ سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی کہ پانی بھرا ہوا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اگر وہ پانی تہ میں سے اپنے شگافوں میں سے وہ خارج ہو کے وہ زمین کے اندر نہیں چلا جاتا، اور اگر ایسا ہو پانی کو اللہ تعالیٰ نے سٹور کیا ہوا ہے، اور پانی کو سٹور کیا ہوا ہے تو ہماری بارشوں کا سسٹم ہے، ہماری پیداوار ہے، ہمارے جاندار ہیں، ہمارے چرند پرند اور انسانوں کی سروائیول اس سے ممکن ہے۔ اور اگر بارش کا نظام نہ ہو تو آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے ساتھ اور ہماری کائنات کے ساتھ کیا ہو۔ پھر اسی طریقے سے یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نمک ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمندروں میں جو نمک ملایا ہوا ہے، والبحر المسجور، بھرے ہوئے، آپ دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں والبحر المسجور، سمندر ہیں جو کہ بھرے ہوئے، اب اس میں کیا بھرے ہوئے، کیا وہ سمندر بھرے ہوئے ہیں یا ان میں نمک بھرا ہوا ہے، یا ان میں جو ہماری خوراک کا نظام ہے، جو ہماری فش ہے، جو سی فوڈ ہے وہ بھرا ہوا ہے؟ وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پانی میں نمک ملایا ہوا ہے، اگر یہ پانی نہ ہو تو جو ڈیتھ ہو جاتی ہے جن جانداروں کی، تو اس سے جو ہے وہ پانی پوائزنس ہو جائے، وہ پانی پینے کے لائق نہ رہے، اور پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا جب وہ اس میں نمک نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سسٹم کیا والبحر المسجور۔ اور اگر یہ نہ ہو، یہ سوکھ جائے تو کیا ہو؟ ان عذاب ربک لواقع، یہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ ایک اشارہ جو کہ بعض علماء کرام نے کہا یہ جو ٹورنیڈوز چلتے ہیں، یہ جو سمندری طوفان ہے، یہ اس چیز کا اشارہ دیتے ہیں۔ اس میں ایک جو یہ ہے کہ والبحر المسجور سے جو کہ قریش کو کیا کہا گیا، جو قریش جو ہیں، ایک اور اس میں ملتے ہیں کہ جب قریش جو تھے، جب وہ سمندری سفر کیا کرتے تھے، اور جب وہ کسی سمندری طوفان میں جب وہ کشتی میں جاتے تھے، جب وہ سمندری طوفان آتا تھا تو وہ تمام بتوں کو چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، کہ اگر تو نے مجھے بچا لیا، ابو جہل کا بیٹا ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اے اللہ، کہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا، تو اگر اس سمندری طوفان سے تو نے مجھے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ایک جگہ کہا کہ جب تم اس طرح طوفان میں گر جاتے ہو تو تم سب کو چھوڑ کے تمہیں صرف اپنا اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جیسے ہی طوفان ختم ہوتا ہے تم کنارے پہ پہنچے تو پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ تو وہ والبحر المسجور جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طریقے سے جو سمندری طوفان آ جاتے ہیں اور تم بے بس ہو جاتے ہو، تمہارا سمندری طوفان میں بے بس ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اس کو صرف اس ما لہ من دافع، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔